Hello, Pranam, Namaskar. You're listening to the Green Podcast, and I'm your host, Prachi, the Tattva Girl. We all know that human behavior is a key factor in climate change, and it can also help mitigate the effects of climate change. Human activities that emit greenhouse gases like methane and carbon dioxide are largely responsible for current climate change trends. इसी में जब हम बात करते हैं इम्पैक्ट्स की, तो कुछ टर्म्स जो आती हैं जो एनवायरनमेंट को ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं, दे आर लाइक डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग व्हिच इज हैपनिंग दीस डेज, ओवर हार्वेस्टिंग, पोल्यूशन एंड एग्रीकल्चर। जबकि उसकी जगह गुड ह्यूमन इम्पैक्ट्स होने चाहिए रिफॉरेस्टेशन, यूजिंग क्लीन एनर्जी एंड प्रोटेक्टिंग नेचुरल प्रिजर्व्स एंड फॉरेस्ट टू मेंटेन द नेचुरल बायोडाइवर्सिटी। अब इस बैड इफेक्ट्स को गुड इफेक्ट्स में बदलने के लिए क्या करना होगा? एफर्ट्स पुट इन करने होंगे, अवेयरनेस देनी होगी। एंड ह्यूमंस जो ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, when we say that they're destroying the earth, I think it is because of ignorance of the impact of actions to the world's sensitive ecosystem. तो इस इग्नोरेंस को दूर कैसे किया जाए? आई थिंक इग्नोरेंस को दूर करने के लिए जरूरत होती है अवेयरनेस की, एजुकेशन की, उस चीज को कॉन्शियसली बताने की। एंड कौन ये कर सकता है? So I think we have a number of such wonderful, good souls who are constantly motivating and inspiring people. उन्हीं में से एक आज मेरे साथ है जिनका नाम है जेनित चौधरी, who is a consultant with Commissioner Manesar. She has also done numerous certified trainings with CSC, 3R0 Wiz, DEP, APEJ, EDX. She is herself a postgraduate in production and operations management as well as food technology. उनके लिस्ट में और भी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई जो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। उससे पहले मैं उनको अपने पॉडकास्ट पे पहले बुला लेती हूँ। तो जेनित जी, मोस्ट वेलकम टू द ग्रीन पॉडकास्ट। हाउ आर यू? Thank you so much, Prachi. I'm doing great. I'm fine. Thank you so much. What about you? कैसे हैं आप? Good, and so glad that finally we got connected and we are able to record this. True. Very So, true. आगे बढ़ने से पहले जेनित जी के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूंगी। Zenit ji is working, as I said, as a consultant with Commissioner Manesar. She has herself served as the environment club head in her 10 years experience in education sector. She has more than 5 years of experience in the social sector as an active citizen volunteer. She has even collaborated closely with NGOs that are serving in the environment sector, including I Am Gurgaon, Sahas, Lions Club Environmental Team, etc. She has even conducted training sessions at NIFTE and Sonipat on global food waste management and hunger management. She has facilitated workshops and training sessions at court complexes with DLSA on plastic and menstrual waste management. She has even provided capacity building workshop sessions for various categories of workers, including sanitation workers, multi-purpose health workers, and multitask workers. सिर्फ इतना ही नहीं, इनके लिस्ट में और भी बहुत सारी चीजें। जेनित जी, सफर शुरू करते हैं। मुझे ये बताइए, इतनी सारी उपलब्धियों के बाद, इतने सारे प्रोजेक्ट्स, एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स एंड इन सब के लिए इतने वर्कशॉप्स एंड ये सब करने के बाद, you certainly are inspiring and motivating all of us. But आपका ये सफर, आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? Like, I would like to know कि what motivated you towards these eco causes? Like, was it a self inspiration या आपको कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपको लगा कि I should go towards these eco causes? Like, how did you start this journey? Yeah, how to say it? I mean, multiple factors होते हैं, मेरा मानना है। बट जो जो हमारे हार्ट में होता है, जो हम पैशनेट होते हैं, वो चीज जो है लाइफ में किसी भी छोटे से इंसिडेंट से भी ना ट्रिगर हो जाती है। सो आई हैव बीन एसोसिएटेड विद सो मेनी एनवायरमेंटल कॉजेज इवन ड्यूरिंग माय कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाइफ ऑल्सो। हाँ, बीच में गैप आ गया, बच्चों के साथ अपना अलग ही एक लेवल पे ना लाइफ बिजी हो जाती है। एंड वन डे एक छोटा सा इंसिडेंट, एक बार it's somewhat around 10 years back, मैं अपनी बैल्कनी में आई वाज ईटिंग सम पीनट्स, और उसके जो छिलके थे उनको अनकॉन्शियसली आई वाज थ्रोइंग फ्रॉम द सेकंड फ्लोर से नीचे फेंक रहे थे, खा रहे थे धूप में। इट वाज अ प्लेजेंट विंटर आफ्टरनून। सो माय डॉटर, शी वाज इन क्लास 3 or 4 आई गेस। तो उसने मुझे कहा, मम्मा अभी तो थोड़ी देर पहले मुझे पढ़ा रहे थे
कि ना मतलब कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, सम उसको एनवायरमेंट स्टडीज मैंने पढ़ा रही होंगी उस दिन। तो इतना मेरे को स्टक किया ये कि हम पढ़ते हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन वही चीजें हमारी हैबिट में, डे टू डे लाइफ में नहीं होती हैं। सो वहां से जो एक चीज जो मेरे अंदर ट्रिगर हुई ना एकदम से, कि मतलब मैं कर कुछ और रही हूँ, बच्चों को कुछ और सिखा रही हूँ, तो ये तो मैं उनको कंफ्यूज कर रही हूँ। मतलब कि मैं जो भी सिखाऊंगी वो ना वो सीखेंगे, ना उस चीज को इम्बाइब करेंगे अपने लाइफ में। फिर मुझे दूसरा इंसिडेंट याद आता है कि जैसे मेरे जो दादाजी थे वो गांव के सरपंच होते थे, और हमारे गांव में जो है ना पानी मतलब साउदर्न हरियाणा में मेरा विलेज है। तो वहां पर पानी वगैरह इतना नहीं होता था उस टाइम पे ना, कल्टीवेशन के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो उन्होंने जो है मतलब रेन वाटर के लिए कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से गांव में एक तालाब बनवाया था। और तब हम बहुत छोटे होते थे, बट हम वहाँ जाते थे। तो उस पूरे प्रोसेस को जब हमने देखा ना, तो एनवायरनमेंट से कि इस चीज का क्या बेनिफिट होगा। फिर बाद में वहां पर मछली पालन भी उन लोगों ने किया, और वहां पर कुछ कुछ साधु महात्मा लोगों ने आके रह के एक छोटा सा मंदिर बनाया, और बहुत सारे फ्रूटिंग ट्रीज जो है ना वहां पर लगाए। मतलब देखते ही देखते कुछ ही सालों में वो छोटा सा एरिया इतना ग्रीन और इतना सुंदर डेवलप हो गया। वहां पर इनफेक्ट मतलब इतनी तरह के बर्ड्स हम लोगों ने देखे बाद में, मतलब विदिन विदिन 4 to 5 years। एंड वो आज भी वैसा का वैसा है। अगर आप उसमें थोड़ा सा जैसे सड़क के किनारे ही है, उतर कर अगर एंटर करेंगे तो एकदम डार्क लगेगा, ऐसा लगेगा कि जैसे हम किसी फॉरेस्ट एरिया में आ गए। तो ये छोटे छोटे इंसिडेंट ऐसे होते हैं जो हमारी हमारी थॉट प्रोसेस जो होता है ना उसको चेंज कर देते हैं। और जब एक बार आप किसी भी डायरेक्शन में अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो, तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता। मतलब फिर वन और दी अदर थिंग, कभी किसी से आपको इंस्पिरेशन मिल रही है, कभी किसी से इंस्पिरेशन मिल रही है, और ये एक थ्रू आउट अ लर्निंग जर्नी होती है। तो आज भी मैं यही कहूंगी कि अब हम बात कर रहे हैं, आपने मुझसे अचानक पूछा कि क्या चीज ने ट्रिगर किया, तो मैं इफ आई सी लॉन्ग बैक, तो आज के दिन वो चीज मेरे लिए शायद मैटर नहीं करती, पर उस टाइम तो मैं सोच ही नहीं रही थी ना, क्योंकि मेरे माइंडसेट में नहीं था। तो जहां से हम शुरू करते हैं, छोटे छोटे इंसिडेंट, बहुत सारी चीजें उसमें ऐड होती चली जाती हैं। एज आई वॉज इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, आई वॉज विद द KR मंगलम। अभी भी वहां पर जैसे जब कोविड आया, तो जब बच्चों को हम ऑनलाइन पढ़ाते थे, बीइंग ए बायोलॉजी एजुकेटर, सो व्हेन आई वाज टीचिंग देम अबाउट द एनवायरनमेंट, उस टाइम पे हमारे पास एक लिबर्टी आई टीचर्स के पास भी, कि हम ना बच्चों को जैसे जूम पे, मीट पे वीडियोस दिखा सकते थे। बच्चों को हमने लैंडफिल के वीडियो दिखाए, वाटर कंजर्वेशन के वीडियो दिखाए। एंड आफ्टर दैट इट वाज अ टोटली चेंज्ड स्टोरी। बच्चों ने इतना कनेक्ट किया उस चीज से, इतना लर्न किया, आज भी वो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इट्स ऑलमोस्ट 4 years नाउ। तो हर चीज हमें कहीं ना कहीं सिखाती है और आगे लेके जाती है। इंडीड इंडीड। और आप जब मुझे ये चीज बता रही हैं तो मैंने आपका एक आर्टिकल पढ़ा था जिसका हेडिंग था ओके। एजुकेशन एनवायरनमेंट एंड एम्पावरमेंट विद जेनिथ चौधरी, एंड आपने बहुत अच्छी कोट उसमें एक लिखी थी विच आई वुड लव टू शेयर। Attitude of the person leads to success or failure, and we all must have keep a positive outlook. With discipline and strong willingness, everything can be achieved. And indeed, Zanit ji, I'm sure आपने जिस तरह से अपनी जर्नी अभी मुझे शेयर की, सर्टनली आपकी ये स्ट्रॉन्ग विलिंगनेस कहीं ना कहीं थी कि यस मुझे ये करना है, एंड आई थिंक दैट हैज व्हाट मोटिवेटेड यू टू रीच एट द लेवल वेयर यू आर राइट नाउ। एंड आप जरूर कह रहे हैं कि जैसे आपने ये बताया कहीं ना कहीं अंदर आपके जरूर था, बिकॉज मैंने ये भी पढ़ा था कि आई थिंक आप, जैसे आपने भी हरियाणा का जिक्र किया, तो आप अपने बचपन में भी शायद कई बार सैपलिंग्स वगैरह लगाती थी, जो मैंने आपके में पढ़ा। तो कहीं ना कहीं इम्बाइब जरूर था आपके अंदर ही, वो था पैशन कि हाँ एनवायरनमेंट के लिए मुझे कुछ करना है। वो बात बिल्कुल सही है कि एक यस, छोटा सा इंसिडेंट जरूर होता है। वेरी ट्रू। ऐसा ही मुझे एक छोटा सा सिमिलर इंसिडेंट याद है। मैं जब छोटी थी, स्कूल जाते थे, तब स्कूल बस नहीं होती थी, एंड माय मॉम वाज आल्सो लेक्चरर इन द सेम स्कूल। तो हम बस से दोपहर को वापस आते थे, तो मम्मी की आदत होती ना संतरे या मूंगफली खाने को देने की, तो सेम एज यू शेयर। मेरे को तब से याद है संतरे के छिलके और मूंगफली के छिलके मैंने कभी बस के बाहर नहीं फेंके। वी ऑलवेज यूज्ड टू कलेक्ट देम इन अ छोटा सा पॉलिथीन बैग होती थी जो। तो वो चीजें ना आदत में थी, इट वाज नॉट कि अभी आकर कॉन्शियसनेस है, कहीं ना कहीं यस, हम वो सीखे होते हैं, कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि यस ये सही है करना, एंड शायद बिल्कुल किसी बिल्कुल, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। आगे इन बढ़ते आवर हैं। हार्ट वी ऑलवेज नो व्हाट इज राइट। दैट बिल्कुल इज दैट इज फॉर श्योर। हम क्यों नहीं करते हैं, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
ओके, ये यस। बताइए कि आप जैसे आई एम गुरुग्राम है या रावली बचाओ मूवमेंट है, इन सब के साथ भी जुड़ी हुई हैं, सपोर्टिंग ग्रीनरी। सो ये सारे जो कॉजेज हैं, हाउ डू यू गो अबाउट इट, लाइक मतलब व्हाट मेक्स यू पार्ट ऑफ देम एंड हाउ हैज बीन द एक्सपीरियंस सो फार? से मतलब आई कैन जस्ट से कि एनी वन हु सो एवर इज कनेक्टिंग देमसेल्व्स टू एनवायरमेंटल इश्यूज, चाहे वो फोरेस्टेशन है, प्लांटेशन है, वेस्ट मैनेजमेंट है, वाटर कंजर्वेशन है, या वट, तो कहीं ना कहीं ये एक लाइक माइंडनेस होती है। आई यूजुअली, हम जब फ्रेंड्स होते हैं, हम आपस में बैठते हैं, हंसते हैं, तो हम ये कहते हैं कि वी आर ए कम्युनिटी, मतलब जो सिर्फ इसी डायरेक्शन में सोचता है। तो जब मैंने 2018 के एंड में और 19 के मिड 19 में गुड़गांव में वॉलेंटरली थोड़ा सा मैंने सोशल जो है ना काम वगैरह ज्यादा करना शुरू किया, एट दैट टाइम आई केम इन कनेक्ट विद आई एम गुड़गांव, जो है एनजीओ है, और बहुत सारे उनके साथ प्लांटेशन ड्राइव्स में हमने काम किया। मतलब आई जस्ट गोट एसोसिएटेड विद देम, मतलब वहां पे जाना वॉलेंटरली, क्योंकि वो स्कूल्स के बच्चे आते थे, उनके साथ पूरा प्लांटेशन करना। और the way those people were handling these plantation drives, I mean, systematically and professionally। और हम्म। साथ ही साथ आप देखोगे कि उसके बाद 3 साल तक उन प्लांट्स की केयर भी कर रहे हैं, जब तक वो प्लांट्स ऑन देयर ओन नहीं हो जाते हैं। आई एम गुड़गांव ने, एनजीओ ने गुड़गांव में आई थिंक 6 ऐसे प्रोजेक्ट किए हैं जो गुड़गांव के लिए अभी बिल्कुल ही ग्रीन कॉरिडोर की तरह हो गए हैं। अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क है, बादशाहपुर ड्रेन का उनका प्रोजेक्ट है, या ये जो चकरपुर बांध वाला, जो बंद वाला, जो यहाँ पर एक बिल्कुल मेरे घर के पास में है, जस्ट हाफ एन किलोमीटर, सो ये बहुत सारी चीजें जो होती है ना, ये फिर आपको प्रोफेशनल लोगों से जोड़ती हैं, क्योंकि वो पहले से उस सेक्टर में काम कर रहे हैं। उन्होंने जो चैलेंजेस फेस किए, उनसे बात करते करते आपका बहुत सारा तो प्रॉब्लम वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाता है, क्योंकि रेडीमेड सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं कि यस, ये भी किया जा सकता है। ठीक है, एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम करना और फिर टीम के साथ काम करना, तो डेफिनेटली जो इम्पैक्ट है और जो रिजल्ट है, रिजल्ट विल बी मोर स्पेसिफिक, यू कैन से। एंड देन साहस एनजीओ है, साहस एनजीओ के साथ जुड़ के उनका जैसे अलग करो जो प्रोजेक्ट था, मतलब गीला सूखा कूड़ा अलग करो, अलग करो जो है ना, उस टाइम पे एक मुहिम की तरह गुड़गांव में शुरू हो गया। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें उस टाइम पे होती चली गई। अरावली बचाओ अगेन, क्योंकि एनवायरमेंट जो है ना, एवरीथिंग मोर और लेस इज रिलेटेड टू दी ट्रीज। ठीक है, सारा का सारा जो हमारा मतलब साइकिल्स हैं, कार्बन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, वाटर साइकिल है, हाइड्रोजन साइकिल है, या हमारा नाइट्रोजन साइकिल है, सारे हमारे लाइफ साइकिल्स जो हैं प्लांट्स के साथ, प्लांट्स उनका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। आई मस्ट से ट्रीज, फॉरेस्ट जो है। और हरियाणा में, क्योंकि आज के दिन भी पूरे इंडिया में लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर है, हम एक मोस्ट पोल्यूटेड, वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी गुड़गांव में रह रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम्स थोड़ी डिफरेंट हैं, यानी कि हरियाणा स्टेट में ही ग्रीन कवर सबसे कम है, और हम गुड़गांव में रह रहे हैं जहाँ पोल्यूशन सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि हम तो दोनों ही तरह से वर्सली अफेक्टेड लोग हो जाएंगे। जो पोल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, डिजीजेस हैं, इम्पैक्ट है, वो हमारे ऊपर ज्यादा होगा। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये धीरे धीरे आप एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी चीज से आप जुड़ते चले जाते हो। जब आप एक प्रॉब्लम, एक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हो, तो पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके आगे आती हैं। ठीक है, जैसे फिर आप एक प्रॉब्लम को समझते हो, तो आप देखते हो कि उस प्रॉब्लम की डेप्थ में रीजन कुछ और ही है। ठीक है, तो धीरे धीरे मतलब एक से दूसरी चीजों से जुड़ते ही चले गए। फिर प्लास्टिक का इम्पैक्ट बीच में आ गया कि ये सिर्फ वेस्ट की प्रॉब्लम नहीं है, प्लास्टिक एक अनदर बहुत बड़ा इशू बन चुका है। ठीक है, उसके बाद हम पोल्यूशन पे आ गए, सीएनडी वेस्ट पे आ गए, वेस्ट मैनेजमेंट पे आ गए। तो ये सारी की सारी चीजें कनेक्टेड। आप देखोगे कि वेस्ट को मैनेज करने के लिए बहुत सारी लैंड चाहिए होती है। ठीक है, वहां पर अगर लैंडफिल बना दिया, तो उसमें से जो लेचेट होता है, वो लेचेट आपके ग्राउंड वाटर को इम्पेक्ट करता है। ऑलरेडी जो है गुड़गांव ड्राई जोन में है, बहुत सारे गाँव में तो यहाँ पर अभी भी पानी जो है ना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना, एनवायरनमेंट इन सब चीजों से मिलके बनता है, और एक चीज दूसरे को इम्पैक्ट जरूर करती है। तो इस तरह से वो जर्नी जो शुरू होती है ना, वो बहुत डिफरेंट डायरेक्शन में भी जाना शुरू हो जाती है। और आफ्टर सम टाइम यू रियलाइज एग्जैक्टली कि मतलब जो है, आफ्टर सम टाइम यू रियलाइज कि
मतलब आपको क्योंकि सारे काम आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, कि मैं फोरेस्टेशन में भी इन्वॉल्व हो जाऊं, मैं वेस्ट मैनेजमेंट भी कर लूं, उसमें शायद हम उतना फोकस करके और डेप्थ में उस प्रॉब्लम को एनालाइज नहीं कर पाते हैं। तो फाइनली आई आई स्टार्टेड वर्किंग इन वेस्ट मैनेजमेंट। तो इस तरीके से मतलब ये सारी चीजें रिलेट हो गई। राइट, आपने भी एक वर्ड कहा इम्पैक्ट एनालिसिस। तो जब हम बात करते हैं या एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट एनालिसिस की, एंड लोगों का जो ये बिहेवियरल चेंज है उसको हम जब अवेयर करवाते हैं, प्रमोट करवाते हैं, उन्हें समझाते हैं, तो उसको लेकर चलती हूँ। एंड जब हम मेरी आपसे पहले बात हुई थी तो आपने जिक्र किया था वर्कशॉप्स का, जो आप शायद मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे भी लेते हैं एंड वेस्ट मैनेजमेंट पे भी लेते यस हैं। तो मुझे ये यस बताइए, यस। व्हेन यू आर टेकिंग दीज काइंड ऑफ वर्कशॉप्स, एंड एट टाइम्स पीपल की तरह तरह की क्वेरीज होती होंगी, कुछ लोग समझते होंगे, कुछ लोग नहीं भी समझते होंगे। सो वेरी ट्रू। इनका इम्पैक्ट समझाने की उनको पूरी तरह से कोशिश करते हैं, यू आर painstakingly taking these efforts and explaining them. How has been the response of people, and how has been your experience while taking these kind of workshops, especially menstrual hygiene में जरूर पूछना चाहूंगी, बिकॉज आपने जिक्र किया था कि you have been concentrating on weaker sections. So what has been the experience या and the journey so far? से एक्सपीरियंस जो है ना, ये भी मैं कहूंगी मिक्स ऑफ एवरीथिंग है। लोग ऐसा नहीं, मतलब जब आप हम दो तरह के लोगों की बात करते हैं। एक बार हम बात करते हैं, चलिए, जो जो फाइनेंशियली मतलब कैपेबल लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, जिनको समझ आता है, जिन्हें पता भी होता है। Mhm, सबसे बड़ी बात है कि आप जिनको सिखाने जाते हो ना, बहुत सारे लोगों को सारी ही बातें पता होती हैं। mhm, नाउ हाउ टू, मतलब जो जो सोया हुआ है ना अंदर, जो वो इम्पैक्ट है कहते हो जिसको, आई मीन जो अवेयरनेस है, mhm, उसको अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे मतलब ये सारी चीजें की जाएं, कैसे इन सब चीजों को अपनी डे टू डे लाइफ में इंक्लूड किया जाए। तो mhm, जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे दो एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। अ, दो डिफरेंट वर्कशॉप्स मैंने की। एक मैंने मानेसर में एक आरडब्ल्यूए के साथ किया, विपुल लावण्या में लेडीज सेक्शन के साथ किया। तो उन लोगों की क्वेरीज, और एक मैंने हमारे ही जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, जो झाड़ू लगाने वाली कर्मचारी महिलाएं हैं, एक उनके साथ किया। तो मुद्दा यहाँ पर दो चीजों का होता है। एक होती है पर्सनल हाइजीन, फिर होता है मतलब मेंस्ट्रुअल वेस्ट, उसको कैसे मैनेज करना है। और मेंस्ट्रुअल वेस्ट जो है वो तो होगा ही होगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन कि आप उसको खत्म कर सकते हो, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी प्रिमिटिव विद द लाइफ, यू नो। तो मेंस्ट्रुएशन भी होगा, और मेंस्ट्रुएशन को इट्स नॉट लाइक कि वी स्टॉप यूजिंग समथिंग, वी कैन नॉट डू दैट। तो mhm, उसको कैसे मतलब कंट्रोल किया जाए। तो ऐसे में जो सबसे मैंने अपने पिछले 5 साल में मैंने बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स पर्सनली पहले यूज करके, मतलब यू विल mhm, बी सो सरप्राइज्ड कि मतलब आई हैव ट्राइड एंड टेस्ट, ये एक पूरा टेस्ट की तरह मतलब मैंने किया था। mhm, फाइनली आई दिस menstrual cups are the best option I personally I mean found। and then उसका जो environmental impact है, कि एक कप जो है 7 to 8 years इनफ होता है, ठीक है। उसकी कॉस्ट भी 200 to 300 के बीच में होती है। प्लस वो जो है ना, मतलब इतने सारे वेस्ट को भी रिड्यूस करता है। एंड उसके साथ हाइजीनिक इश्यूज भी जो हैं वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। पैड के अंदर प्लास्टिक होता है। अब ये सारी बातें अगर आप एक सैनिटेशन वाली कर्मचारी महिला को समझाएंगे, तो कुछ चीजें उनको समझ आएंगी, कुछ उनको नहीं समझ आएंगी। बट mhm, उन लोगों के साथ सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है? अगर वो आपसे कनेक्ट करते हैं ना, कि अगर उनको मेरे पे ट्रस्ट आ गया ना बात करते हुए, तो वो आपकी सारी बातों को मानेंगे भी, और उन बातों को अपनी लाइफ में वो बिल्कुल मतलब ना इंक्लूड कर लेते हैं। और एक बार जो शुरू कर देते हैं उससे वो पीछे भी नहीं हटते, मतलब ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। mhm, हालांकि पढ़े लिखे लोग जितनी भी महिलाओं से मैंने बात की, उन सबको मेंस्ट्रुअल कप के बारे में पता था। उन सबको मतलब कि पैड्स में प्लास्टिक यूज होता है, सबको पता था। लेकिन उसको अपनी लाइफ में एंटर करके और अपनी लाइफ में उस चीज को, सस्टेनेबल चीज को जगह देना, mhm, ये उनको बताना बहुत जरूरी होता है, कि वहां पर आपको वेस्ट मैनेजमेंट भी मतलब देखना पड़ता है। तो इट ऑल अगेन डिपेंड्स कि आप किस क्राउड से बात कर रहे हो, उनका अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या है, उनको उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के तरीके से चीजों को बता पाना, और फिर उस चीज को स्टार्ट कराना। ये एक सबसे बड़ी, मेरे को लगता है कि जो आईईसी कैंपेन्स होते हैं, ये एक सक्सेस वहीं से आती है हमारे अंदर। तो मे बी बिकॉज आई हैव ए रूरल बैकग्राउंड, तो मैं लोगों के साथ, हर सभी लोगों के साथ बहुत कनेक्ट कर पाती हूँ बाय गॉड ग्रेस। तो मुझे इस चीज में बहुत मतलब परमात्मा की दया से मुझे बहुत सक्सेस मिलती है। लोगों से मैं बात करती हूँ, लोग सुनते भी हैं, और सभी तो नहीं बदलते, बट 10 से 20% तो हर बार मुझे लगता है कि लोगों में चेंज आया है।
तो ये इम्पैक्ट। और फिर उसके बाद जब साल बाद 2 साल बाद, क्योंकि आप हर टाइम उनसे नहीं मिल सकते हो, आज आपने एक आरडब्ल्यूए से कनेक्ट किया, फिर हम्म, किसी और सोसाइटी में किया, बट आफ्टर 6 मंथ 8 मंथ और 10 मंथ वो लोग जब वापस आपको मिलते हैं, दे रिमेम्बर यू एंड देन दे टेल देयर स्टोरीज कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया, स्कूल में किया, बच्चों के साथ किया। तो वहां से फिर आपको लगता है कि यस, वट एवर यू हैव बीन डूइंग, एटलीस्ट 10 to 20% जो है लोगों में इम्पैक्ट आता है और लोग उस चेंज को अडॉप्ट करते हैं। तो देन यू फील मोटिवेटेड। वंडरफुल वंडरफुल, सर्टनली आपने बिल्कुल सही कहा। बिकॉज वही होता है ना कि एक जस्ट थ्योरेटिकल ज्ञान है या सिर्फ दूसरा ज्ञान है, वो देना एक अलग बात होती है। बट ऑन ग्राउंड जाकर किसी को समझाना, उसके डिसएडवांटेजेस यस, एडवांटेजेस बताना, वो एक ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच होता है। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दीज पीपल, तो इन लोगों को कई बार हमें कहते हैं कि समझाना मुश्किल होता है, एंड आई एम रियली ग्लैड व्हेन यू से यू आर एबल टू कनेक्ट विद देम, तो दैट इज सर्टनली अ विन फॉर यू। चाहे 15-20% ही सही, बट एटलीस्ट वी आर एबल टू ब्रिंग दैट चेंज, टू एक्सप्लेन देम कि एनवायरमेंट को इससे क्या हार्म हो रहा है, हमें ये क्यों यूज करना है। बिकॉज ये चीज मैं एज अ पर्सन भी कहूँ, मैं भी कई महीनों तक हिचकती रही हूँ यूज करने के लिए। इट वॉज बिग। yes. मैं Inhibition to start, inhibition of the यस change. यस यस। Yes. तो बस वही है कि एक बार स्टार्ट करने के लिए वो थोड़ा सा मोटिवेशन जब मतलब मुझे लग रहा है, तो आई एम श्योर हर इंसान को वो बिगिन करने के लिए, मतलब एक होता है कि आपको शायद टीनेज में पता लग Yes. गया, तो बात अलग है। आफ्टर यू ग्रो अप, तो इट्स वेरी अभी डिफिकल्ट टू चेंज। अभी just one small example. Last month I went to this Polytechnic College Manesar. तो हम्म वहां पे मतलब स्टूडेंट्स के साथ मैंने, इवन फॉर सच वर्कशॉप्स आई टेक सैंपल्स अलोंग विद मी टू शो द यंग जनरेशन, तो उनको फील आता है कि वो क्या चीज है और उसको कैसे करना है और सारी चीजों के लिए। सो व्हेन आई वाज शोइंग देम सैंपल्स, तो उनमें से मैंने कहा आ जाओ, आके लेके जाओ, देखो इन सभी चीजों को और इनको कैसे यूज करना है। तो हम्म दोज गर्ल्स वर मतलब दे वर सो हैप्पी एंड दे कनेक्टेड सो वेल। एंड उसके बाद बच्चों के साथ तो सेशन जो है अराउंड 45 मिनट्स का था, बट टीचर्स और प्रिंसिपल के साथ मुझे 1.5 hour लगा। और उसके प्रिंसिपल मैडम, शी हरसेल्फ वाज सो हैप्पी एंड शी सेड कि मतलब मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं इस चीज को देखूं कि मतलब ये एक्चुअली होता क्या है। तो दिस इज इनहिबिशन, या कि पढ़े लिखे लोग भी उस चीज को स्टार्ट करने में, उस चीज को देखने में, समझने में थोड़ा हिचकते हैं। तो यहीं से मतलब आपकी जर्नी वहीं से शुरू होती है, जब आप लोगों से कनेक्ट करके। मैंने उन्हें कहा कि आप मेरी गारंटी पे एक बार यूज कर लो। लेटर आई वाज फीलिंग कि अगर 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 किसी को कोई भी किसी भी लेवल का इश्यू आया तो पकड़ कर पीटेंगे, बट इट वाज लाइक दैट। मतलब आई जस्ट पोस्ट एट दैट टाइम कि आप एक बार यूज करिए, आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट इट। So sometimes at every person you know different strategies, different ये सारा, but yes, I enjoy it thoroughly. वंडरफुल एनर्जी, मतलब बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि द वे यू आर इम्पार्टिंग दिस इंफॉर्मेशन टू पीपल, मेकिंग देम अवेयर ऑफ द गुड चॉइसेस दैट दे कैन मेक, कॉन्शियस चीजें चूज करने के लिए आप उनको हेल्प कर रहे हैं, एंड यू हैव योर जर्नी सर्टनली इज रियली Exactly. मोटिवेटिंग फॉर दैट। चलिए आगे बढ़ती हूँ। आपसे बात की थी तो एक और आपने बहुत अच्छी चीज जो मुझे बताई थी, विच यू हैव बीन डूइंग एट कम्युनिटी लेवल, यू वर टॉकिंग अबाउट सम ग्रुप्स दैट यू हैव स्टार्टेड, रीयूज, रिसाइकल एंड स्वॉप्स के बारे में हमने बात की थी। तो उन ग्रुप्स के बारे Yeah, में yeah, yeah. बताइए, बिकॉज मैं जरूर चाहूंगी टू, दिस इज अ कॉल टू ऑल माय लिसनर्स कि जिस तरह की बात अभी जन जी बनाने वाली है, इस तरह के ग्रुप्स आप भी अपने एरिया में, अपनी कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में, अपने शुरू कर छोटे सकते गली हैं। मोहल्ले सिटी में कर सकते हैं, बिकॉज दे आर रियली हेल्पफुल। तो ओवर टू जन जी, प्लीज बताइए मुझे इन इनिशिएटिव्स के बारे Yeah. में कर रही हैं। Yeah, so one thing actually, in 2015, end of the 2015-16 वाला जो टाइम पीरियड था, उस वक्त में मेरी डॉटर, अभी माई डॉटर इज इन क्लास 12th राइट नाउ, एंड जब वो क्लास 6 में आई थी, तो बिकॉज आई वाज आल्सो ए टीचर एंड आई हैव बीन टीचिंग साइंस फॉर समवॉट अराउंड 10 years in Gurgaon itself. सो यू सी मतलब वो एनसीईआरटी की किताबें और वो सिलेबस कभी चेंज नहीं हुआ था पिछले बहुत सारे साल में। और हर साल स्कूल से सभी पेरेंट्स, सभी बच्चे, लगभग सभी स्कूलों में, स्कूल से या स्कूल से बाहर से भी नोटबुक एंड न्यू बुक्स का सेट खरीदने का एक सिस्टम ट्रेंड था। आई मीन सो आई स्टार्टेड विद, बिकॉज मेरे पास क्लास 6 की भी किताबें रखी हुई थी, मेरे पास स्पेसिमेन कॉपी भी आती थी, तो आई यूज्ड टू से कि जब घर पर ये किताबें रखी हैं तो मुझे स्कूल के साथ नोटबुक सेट के साथ किताबें एनसीईआरटी के क्यों खरीदनी है। हम पढ़ा रहे हैं कि भाई पेड़ मत काटिए, क्योंकि मतलब 17 पेड़ कटेंगे तो 1 टन जो है ना पेपर प्रोड्यूस होता है, मतलब वो पेपर बनाने के लिए डेफिनेटली ट्रीज चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे
प्रोडक्शन, पेपर प्रोडक्शन जो इंडस्ट्री है, पूरी हम्म, इंडस्ट्री में पानी भी बहुत ज्यादा यूटिलाइज होता है, केमिकल्स बहुत ज्यादा यूटिलाइज होते हैं, और ये वाली इंडस्ट्री यूजुअली बहुत सारे फॉरेस्ट एरिया में है। तो बहुत सारी नदियों में और राजस्थान के अंदर मतलब बहुत सारी जगहों पर जो है ना पानी, वही ये पेपर इंडस्ट्री की वजह से जो है ना पोल्यूट हो चुका है। तो ये मतलब जब हम कुछ चीजों को अपनी लाइफ में चेंज करके या कुछ बदलाव लाकर हम अगर 1% भी चेंज ला सकते हैं, 1% भी रिड्यूस कर सकते हैं पोल्यूशन को, वाटर पोल्यूशन को, तो हमें मतलब मेरे को तो ये करना चाहिए। सो स्कूल मैनेजमेंट के साथ भी मेरी थोड़ी सी इस बारे में काफी बहस हुई उस टाइम पे कि भाई, मैंने उनसे यही पूछा कि भाई सभी स्कूल्स जो हैं वो तो, हम सारे स्कूल से 3R को प्रमोट करते हैं कि रिड्यूस करो, रीयूज करो, रिसाइकल करो, तो नई किताबें मैं क्यों खरीदूं? अब इस बात का तो जवाब डेफिनेटली टेक्निकली कोई दे ही नहीं सकता, है ही नहीं। तो मैंने जो है पिछले, फिर कुछ मेरे जैसे और पेरेंट्स थे, जैसे बातें होती थी पीटीएम वगैरह में, तो एक छोटा सा ग्रुप बनाया मैंने, एक व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया 2016 में। ठीक है, तो वहाँ बुक्स एक्सचेंज का प्रोग्राम हमने शुरू किया, जैसे कि जो जो बच्चे क्लास 7th में हैं, उनसे मैं अपने बच्चे के लिए क्लास 6th की बुक्स ले लूँ, मतलब जो क्लास 6 में नेक्स्ट जो बच्चे आ रहे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जस्ट एक्सचेंजिंग द बुक्स, और नोटबुक्स भी किसी को चाहिए तो वो भी ले लीजिए, बिकॉज समटाइम दे हैव टू रेफर, यू नो। तो उस ग्रुप में आज वेरी वेरी मतलब हैप्पीली आई कैन शेयर कि वी आर 847 पेरेंट्स आर एसोसिएटेड देयर। और जब शुरू किया तो कुछ 15-17 पेरेंट्स के ग्रुप से शुरू किया था। तो पिछले 8 साल में मैं बताना चाहूंगी कि मतलब मैंने जो है अपने बच्चों के लिए, दोनों ही बच्चों के लिए, मैंने अपने बच्चों के लिए कोई न्यू न्यू बुक्स, आई मीन नोटबुक्स तो डेफिनेटली लिए हैं, बट न्यू बुक्स मैंने नहीं खरीदी। और मेरी ही तरह के बहुत सारे पेरेंट्स हैं उस ग्रुप में। हैप्पीली जैसे अभी जैसे सेशन एंड होगा तो वी विल बी राइटिंग कि मुझे क्लास 9 की बुक चाहिए है और क्लास 8 की किसी को चाहिए तो कनेक्ट कर लो। तो वी आर जस्ट एक्सचेंजिंग दिस बुक्स एंड ऑल। तो अगर आप उसको सिंपल भी कैलकुलेट करोगे कि 8 साल में 500 पेरेंट्स ने मतलब अगर 50 kg के जो बुक्स हैं उनको भी अगर एक्सचेंज किया है, तो हमने कितना जो है ना पेपर प्रोडक्शन को या मतलब इसको रिड्यूस किया है। तो ये इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ना, जब वो टनेज में वेट आता है, देन यू सी द इम्पैक्ट के। और उतना टन कितने पेड़ों से, बेशक हो सकता है हमने 100 पेड़ ही बचाए होंगे, मैं नहीं जानती, मतलब एग्जैक्टली उसका बहुत सारी तरह से एनवायरमेंटल का जो इम्पैक्ट का एनालिसिस है वो बहुत सारे लेवल पे होता है, डायरेक्टली भी होता है, एक इनडायरेक्टली होते हैं, टेंजिबल नॉन टेंजिबल इफेक्ट्स होते हैं। तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव था जहां पर रिड्यूस को भी प्रमोट किया गया, रीयूज को भी प्रमोट किया गया। ठीक है, एंड सिमिलरली जैसे स्टोरी बुक्स हैं, हमने स्टोरी बुक्स का एक शुरू किया कि अब बहुत सारे हैप्पीली मतलब हम फोटोज खींचते हैं, 10-15-20 स्टोरी बुक्स होती है, मेरे बच्चों ने पढ़ ली, इनको भाई आप ले जाइए, आपके बच्चों ने जो पढ़ लिए हैं वो मेरे बच्चों को दे दीजिए। पूरे टाइम मैंने, मुझे शायद हो गए 4 से 5 साल, मैंने कोई बच्चों के लिए स्टोरी बुक नहीं खरीदी। और पर मेरे मेरे घर में एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है जिसमें फिक्शन नॉन फिक्शन बहुत सारी किताबें आपको मिलेंगी। तो माई माई किड्स आर गिविंग अवे, दे आर टेकिंग, एंड बहुत सारी सोसाइटीज में भी एक ही इनिशिएटिव किया। फिर वन ऑफ माई फ्रेंड हिमानी पुंडीर करके, शी इज इन गुड़गांव, तो उसने एक स्वैप ग्रुप शुरू किया था जहां पर मतलब सेल, गिव अवे, परचेज, मतलब सेकंड हैंड चीजें आप कह सकते हो। मुझे कोई चीज सपोज एनीथिंग किसी ने मुझे गिफ्ट कर दिया, समटाइम हमारे पास बहुत सारी चीजें आती हैं जो हमें नहीं चाहिए, हमारे पास डबल ट्रिपल हो गई हैं, तो उसको हाफ द प्राइस और वट एवर, मतलब दे कॉट द प्राइस, और किसी को चाहिए तो वो खरीद लेते हैं। दैट वे वी आर रिड्यूसिंग कंजम्पशन, दैट वे पीपल आर प्रोडक्शन कम हो रहा है, प्रोडक्शन कम होगा तो डेफिनेटली नेचुरल रिसोर्सेज का कंजम्पशन जो है ना वो कम होगा। तो ये छोटे छोटे से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो किए हैं मतलब हम लोगों ने। और मैं ही नहीं, मतलब बहुत सारे लोग हैं गुड़गांव में मेरे जैसे, मैंने भी उनसे सीखा है, मोटिवेशन ली है। और सिमिलरली मुझे लगता है कि शायद मेरी स्टोरी भी किसी को मोटिवेट करेगी। तो कहीं से भी कुछ भी सीखना, तो दिस इज अगेन कंटिन्यूअस प्रोसेस। बिल्कुल 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 जैनब जी, बिल्कुल। आपकी स्टोरी तो सर्टनली इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग है। एंड आपने ये लाइन बहुत सही कही कि एक कांस्टेंट एफर्ट जब आप पुट इन करते रहते हो, आप शुरू करते हो, शायद शुरू में आपको इतना सक्सेस ना मिले, बट यू हैव टू कीप ऑन डूइंग। डेफिनेटली जैसे आपसे मेरी पहले भी सक्सेस बात हुई, ओवरनाइट नहीं आती। बिल्कुल यस, बिल्कुल, तब भी आपने ये शब्द इस्तेमाल किया था कि कंसिस्टेंटली एंड परसिस्टेंटली जब हम इन यस, एफर्ट्स को करते हैं। एवरी डे, एवरी डे के एफर्ट्स हैं, दिस इज एवरी डेज एफर्ट्स। बिल्कुल, एंड यही एफर्ट्स हमें एनवायरनमेंट के लिए भी लोगों को कॉन्शियस करने के लिए रिक्वायर्ड है। बिकॉज मेरे साथ भी होता है, हम बिल्कुल, कभी कभी हार मान जाते हैं कि यार हम किसी को कन्विंस नहीं कर पा रहे, लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं, बट वही है कि थोड़ा सा कंसिस्टेंटली, धीरे 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 वो चेंज आएगा। ओवर द नाइट तो नहीं आएगा, बट यस,
टाइम एंड अभी आप जैसे आप अपनी जर्नी शेयर कर रही हैं, तो आपको इतने टाइम के बाद अब जरूर अच्छा लगता होगा कि यस आई डिडंट गिव अप, मैं कोशिश करती रही यू एंड नो आज मैं कुछ यू वोंट बिलीव मी कि मैंने तो ये ग्रुप बनाया, पेरेंट्स जुड़ते चले गए, मैंने बहुत सारे लोगों को एडमिन बना दिया, तो somebody किसी ने मुझे एडमिन से रिमूव कर दिया। आई डेंट रियलाइज, ठीक है, मतलब मेरा क्यों ध्यान जाएगा, बिकॉज एवरीबडी इज एंजॉइंग द एक्सचेंज ऑफ ग्रुप्स। फिर कुछ लोगों ने उसमें पेड प्रमोशन शुरू कर दिया, एंड देन somebody कॉल्ड मी, यार ये तुम्हारे ग्रुप में क्या हो रहा है, तो पैसे मांग रहे हैं एडवर्टीजमेंट करने के। एंड देन आई सडनली रियलाइज व्हाट इज हैपनिंग, तो वहां पर फिर मैंने उस चीज को रोका, और जो है ना, कुछ लोगों की मतलब भाई कि क्या ग्रुप के आप कुछ रूल सेट करो, मतलब आप एडवर्टीजमेंट करो, ट्यूशंस की करो, बट पैसा मत लो। मैं मेरा कोई कोई मतलब 1,000-500 रुपए कमाना तो उद्देश्य हो ही नहीं सकता ना इस तरह के ग्रुप्स का, और ना ही उसमें कुछ आपको कुछ भी किसी भी लेवल पे हासिल नहीं होता है। तो चीजें जो है ना, आप ऐसे ऐसे चैलेंजेस या ऐसी ऐसी चीजें आएंगी, आपको समटाइम्स समझ ही नहीं आएगा कि इसको, अरे ये क्या हो गया, ये तो सोचा ही नहीं था। तो अभी मैंने रियलाइज किया कि 837 पेरेंट्स, ये 15 दिन पहले की बात है, क्योंकि मैं तो ग्रुप बना के आराम से चल रहा है, सब कुछ ध्यान ही नहीं दिया। फिर मैंने रियलाइज किया, यार 8 साल हो गए, 837 पेरेंट्स जुड़ गए, और कितने अच्छे से, मतलब हर रोज उसमें 100-200 पेरेंट्स मैसेज डाल रहे हैं, एवरीबडी इज हेल्पिंग एवरीबडी। देन यू रियलाइज द इम्पैक्ट, मतलब आफ्टर सम टाइम यू रियलाइज कि यस, मतलब नाउ दिस मॉडल हैज बीन सक्सेसफुल। वंडरफुल एंड आई से कि 800 नहीं, ऐसे कितने ही पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हैं। और ये मेरी अपील मेरे लिसनर्स से भी है, लाइक आई एम आल्सो पार्ट ऑफ सिमिलर ग्रुप। आप अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में कहीं पे भी बाय एंड सेल का कोई ग्रुप बना सकते हैं, बिकॉज कई बार ऐसी चीज होती है यस, जिसकी जरूरत हमें नहीं होती पर सामने वाले को उसकी जरूरत हो सकती है, तो इंस्टेड ऑफ बाइंग इट न्यू वी कैन यूज इट। एंड आई थिंक ये यस, चीज हमारे इंडियन घरों में पहले होती भी थी, इट्स नॉट अ न्यू थिंग। बिल्कुल होती है। बस ये है कि विद यस, टाइम यस, ना कुछ स्टैंडर्ड्स या कुछ उस सोच की वजह से हमने उस चीज को थोड़ा सा ये कहूंगी कि निग्लेक्ट कर दिया था, बट आई थिंक वी कैन अगेन थिंक ऑफ इट एंड वी कैन ब्रिंग दैट चेंज वंस अगेन एंड बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रियली रीयूज इज मस्ट, रिड्यूस एंड रीयूज इज मस्ट, मतलब दिस शुड बी इन दी हैबिट। नहीं बिल्कुल चाहिए मत खरीदो, नहीं चाहिए किसी और को दे दो, किसी और के पास है, कोई दे रहा है तो ले लो सामान, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज हाउ वी शुड थिंक। बिल्कुल बिल्कुल। सो रिड्यूस, रीयूज, रीथिंक, उसी में जो आजकल जुड़ गए हैं हमारे, रिपेयर है इकोनॉमी का, रीथिंक यस, है किसी भी चीज रीपर्पज, को, क्या रिपेयर, बहुत बिल्कुल। सारी चीजें। तो यस, ये यस, आर्ट्स को तो आई मस्ट से यस ऑफ कोर्स इट इज हियर कि इसको तो आप अपना मंत्रा बना लीजिए, एक डेली हैबिट का हिस्सा बना लीजिए। एनवायरमेंटल यस, कॉन्शियसनेस ये कोई एक प्रोसेस नहीं है, इसको आपके रोज के ब्रश बिल्कुल करने बिल्कुल, जैसी एक प्रोसेस की तरह ये हैबिट एवरीडे बना। लाइफ का। यस, बिल्कुल। यस, यस। Right, right, right. Chaliye, Zanet it was really nice talking to you, and thank you very much for sharing your experiences on your workshops and activities that you have been doing. Really nice talking to you and knowing your journey. थैंक यू सो मच, एंड रियली मतलब बात करते करते ही मैंने रियलाइज किया कि हाँ, कि कुछ कुछ छोटा मोटा ही सही, मतलब चीजें हो रही हैं, बिल्कुल मतलब हो। हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, वी पीपल आर टॉकिंग, आई मीन अदर पीपल आर टॉकिंग, एंड पीपल आर थिंकिंग एंड टॉकिंग एंड डूइंग। सो दिस इज गुड, दिस इज गुड। Wonderful. My best wishes to you. And I'll just end up this podcast with a quote by Ban Ki-moon, Secretary General United Nations, that we are the first generation that can end poverty and the last generation that can take steps to avoid the worst impact of climate change. डेफिनेटली, यस, Future एग्जैक्टली। generations will judge us harshly if we fail to uphold our यस, moral and historical यस, responsibility. yes, I usually say this in my meetings wherever I go school. तो you see, एक कोटेशन जो है, मतलब एक एक चीज है जो मैं बहुत बार लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मैं बोलती हूँ, चाहे स्कूल में जाऊं या सोसाइटीज में जाऊं या किसी भी मतलब लेवल पर बात करें। सो आई यूजुअली से कि जो मेरी पेरेंटल जनरेशन है, जो हमारी पेरेंटल जनरेशन है, उन्होंने बहुत सारी चीजें, जैसे कि प्लास्टिक का जो यूज करना शुरू किया था, उस टाइम पे नया नया प्लास्टिक जो है प्रोड्यूस हुआ था, उसके इम्पैक्ट भी इतने नहीं पता थे, और ये भी नहीं पता था कि वो इस हद तक हमारी लाइफ में कुछ ही सालों में एंटर कर जाएगा, कि सी लेवल तक पहुंच जाएगा, यू सी। लेकिन जो हमारी जनरेशन है, जो हम लोग हैं, हम लोग तो जानबूझकर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोगों को इसके यूसेस भी पता है, हम लोगों को इसका इम्पैक्ट भी पता है, हम लोगों को इसके पोल्यूशन लेवल के बारे में भी पता है। तो जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, उसको हम कैसी लेगेसी देके जाना चाहते हैं? हम ऐसे कूड़े के पहाड़ छोड़ के जाना चाहते हैं जहां पर मतलब ढेरों प्लास्टिक के ढेर हो, कोई नदियां नहीं बचेंगी, कोई तालाब नहीं बचेंगे, पानी नहीं बचेगा? तो मतलब हम किस तरह का, हमारे हमारी नेक्स्ट जनरेशन को हम क्या देकर जाना चाहते हैं?
सो दिस यूजुअली आई आस्क कि हम जानबूझकर कर रहे हैं, हम कोशिश कर सकते हैं, एक बहुत हद तक हम उसको ना कंट्रोल भी कर सकते हैं। Yeah. एब्सोल्युटली राइट जनित जी, मतलब वेल सेड, बिल्कुल सही कह रही है कि हम हमारे लिए तो अगर एक अच्छी हरी जमीन हमें दिखी है तो ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि हम आने वाली जनरेशंस के लिए क्लीनर अर्थ, एक सेफर अर्थ, एक ग्रीनर प्लैनेट छोड़ के जाएं। एंड उसके लिए एफर्ट्स शायद हमें ही अभी पुट इन करने पड़ेंगे। एफर्ट्स की बात करूंगी तो वो लिसनर्स में बताना चाहूंगी, जनित जी अकेले ही नहीं, उनकी बेटी भी बहुत मोटिवेटिंग है। She is also involved in all these causes, and as she mentioned कि she is in just class 12, लेकिन वो सिर्फ क्लास 12 की नहीं, शी हैज बीन इनटू लॉट ऑफ इको क्लब, शी इज आल्सो ब्रांड एम्बेसडर फॉर many groups and associations. So I must say कि Yeah. this mom and daughter duo, you both are doing an incredible work in raising the awareness, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी, बिकॉज एनवायरमेंट के लिए हमें कोई अलग से कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें अपनी यस, वही यस, आदतों को चेंज करना है, अपने। आदतों को चेंज करना है। यस, उसके लिए कोई हमें ऐसा नहीं कि कहीं जाकर कुछ खरीद के लाना, बिकॉज ये अमूमन होता है, मेरे साथ भी होता है। मैं अगर टिश्यू पेपर यूज नहीं कर रही हूँ ना, तो मेरे सामने बैठे हो दो लोग, वाह तुम तो बड़ी इको फ्रेंडली हो, मुझे ऐसा लगता है तो मुझे कह रहे हो तो तुम भी तो टिश्यू पेपर यूज करना तुम बंद भी तो कर लो। कर। और मतलब ये कितनी, देखा जाए कितनी छोटी सी चीज है कि आप अपना हैंकी कैरी कर रहे हो, यू आर राइट, यूजिंग समथिंग व्हिच कैन बी वॉश्ड ओवर एंड ओवर अगेन। तो एब्सोल्युटली। यही यही बात है। हाँ, पता है उनको कि इको कॉन्शियसनेस है, करना चाहिए, पर शुरू करना बहुत मुश्किल होता है, मतलब दैट इज हाउ आई फील। आई मस्ट से दैट आप सच में इसी तरह से लोगों को मोटिवेट एंड इंस्पायर करते रहिए। जरा जी जाने से पहले बस छोटा सा पूछना चाहूंगी, सिंस यू हैव ऑलरेडी बीन मेकिंग पीपल अवेयर एंड कंट्रीब्यूटिंग योर एफर्ट्स टुवर्ड्स इको कॉन्शियसनेस, तो एक छोटी सी कुछ टिप्स की तरह आप कुछ बताना चाहेंगे कि डेली लाइफ में व्हाट पीपल कैन ब्रिंग इनटू टू रिड्यूस द वेस्ट एंड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, जो मतलब आप कुछ टिप्स देना चाहें हमारे लिसनर्स को। सी वेस्ट मैनेजमेंट का सबसे सबसे पहला तो यही है कि बिफोर बिफोर बाइंग एनीथिंग, जस्ट आस्क योरसेल्फ कि क्या ये चीज हमको चाहिए है, अभी चाहिए है, क्या इसके बिना काम चल सकता है, क्या इसका कोई और ऑल्टरनेटिव हमारे पास अवेलेबल है, या ये हम किसी से बोरो करके फॉर द टाइम बीइंग, या मतलब जो गिव अवेज होते हैं वहां से काम चला सकते हैं। सो रिड्यूस इज द बेस्ट थिंग। उसके बाद रीयूज है आपका, कि जो कुछ भी आपका है उसको खुद रीयूज करो, किसी और को देकर रीयूज करो चीजों का, या उन चीजों का उनको रीपर्पज करके रीयूज करो। मतलब किसी भी तरह चीजों को, जब तक वो बिल्कुल अपने एंड पर ना आ जाए कि अब तो वो किसी के लिए भी, कहीं पर भी, किसी और रूप में भी वो यूजफुल नहीं है, टिल दैट टाइम उसको यूज करें, और उसके बाद उसको रिसाइकलिंग के लिए देना। घर में वेस्ट मैनेजमेंट करना बहुत आसान है। आपने सिंपल क्या करना है, लगभग सभी घरों में आजकल जो है डोमेस्टिक वर्क के लिए मेड्स होती हैं। हम्म। अपनी मेड को ट्रेन कर दीजिए। अपनी मेड को 3 4 5 दिन कहेंगे, उसको समझ आ जाएगा। आपको घर में, मैं मुझे लोग कहते हैं, पूछते हैं कि डस्टबिन जो है ना, वो डस्टबिन नगर निगम को देना चाहिए, या घरों में मैंने 2 रंग के डस्टबिन रखे हुए हैं। मैं हम्म। सिंपल सिंपल से बात करती हूँ कि मुझे लगता है डस्टबिन की हमें हमारे घरों में जरूरत ही नहीं होती है। सिर्फ हम्म। ठीक है, रखा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रख सकते हैं। क्योंकि आप ये देखिए, अगर आपका जो जो भी किचन का आपका वेस्ट है, ठीक है, जो भी पील्स वगैरह हैं, उनको अगर एक हम्म। नेट की बास्केट में भी आप डाल के धूप में रख के उनको थोड़ा ड्राई करके घर में अपना ओन कंपोस्टिंग मैकेनिज्म अडॉप्ट कीजिए। बहुत हम्म। सारे तरीके से घर में खाद बनाई जा सकती है, किसी बाल्टी में भी बनाई जा सकती है, घड़े में बनाई जा सकती है, और बहुत सारे होम कंपोस्टिंग सॉल्यूशंस है, उसमें बनाई जा सकती है। ठीक है, आप उसको वहां पर यूज कर सकते हो। जब आपका वेट वेस्ट, अगर आपका टोटल घर के मतलब रिफ्यूज से अलग हो जाता है, उसके बाद वेस्ट को मैनेज करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपका जो भी ड्राई वेस्ट है, जो भी प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, क्लीन और क्लियर प्लास्टिक, क्लीन एंड क्लियर बॉटल्स, मतलब आप उसे वॉश करके ड्राई करके एक गत्ते के डब्बे में, कार्टन में भी कलेक्ट करके एक साइड में घर के किसी मतलब एक कॉर्नर में रख देंगे, तो उसको आप वन से मंथ आप उसको कबाड़ी वाले को बेच सकते हैं, मेड को दे सकते हैं, वो बेचकर कुछ उसको अर्निंग हो जाएगी 10 20 रुपए। अदरवाइज जो रिसाइकलिंग सेंटर्स है वहां पर दिया जा सकता है। और जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको आप, क्योंकि उसका आप नहीं कर सकते हैं, उसके लिए प्रॉपर जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। बायोमेडिकल वेस्ट है, पैड्स हैं, कोई बैंडेज है, एक्सपायर्ड मेडिसिन हैं, इस तरह की जो चीजें हैं, उनको प्रॉपर जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वेस्ट कलेक्ट करते हैं, उनको अलग तरीके से पैक करके येलो बैग में या समहाउ लाइक दिस आप उसको
दे सकते हो। उसके बाद घर में थोड़ी सी मिट्टी निकलती है बस झाड़ू में, जिसको आप अपने गमलों में डाला जा सकता है। तो घर का वेस्ट को मैनेज करना बहुत आसान है। पुराने, अगर आपका बच्चों का स्कूल का कोई भी पुरानी चीजें हैं, वो आप किसी भी जगह पढ़ने वाले दूसरे बच्चों को दे सकते हैं। पुराने बैग्स भी रीयूज किए जा सकते हैं। सारी चीजें मतलब सोचना ही है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर हर कोई सोचेगा ना कि इस चीज को और कौन यूज कर सकता है, सबके पास सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। और इसी तरह से मतलब घर के वेस्ट को डे टू डे लाइफ में यूटिलाइज किया जा सकता है। पानी के लिए अगेन मतलब आजकल तो घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंडेट हो गया है। ठीक है, ग्रे वाटर को मतलब अपने अपने हाउसेस को मतलब वाटर रिच हाउसेस बनाने के लिए देर आर सर्टेन डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हैं, जिनको आप अगर देखोगे तो हम अपने घर में भी अपने वाटर सस्टेनेबल हाउसेस, हम अपने पुराने घरों में भी इन चीजों को किया जा सकता है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो डे टू डे लाइफ में, कि मतलब वेस्ट क्यों करना है, मतलब सोचना यही है कि अगर ये नहीं करें तो क्या करें। अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, सभी के पास आंसर मिल जाएंगे। आई एम प्रिटी श्योर एवरीबडी हैज स्टडीड, लर्नड, लिसन और हैव सीन सर्टेन सच वीडियोस वेयर सभी चीजों का जो है ना रीयूज और वो सब के बारे में बताया जाता है। तो पीपल आर प्रिटी स्मार्ट। ट्रू ट्रू ट्रू। आपने जब अभी वेस्ट की बात की तो बिल्कुल मेरे को वो लाइन याद आती है जो मैं कई बार बोलती हूँ कि वेस्ट इज नॉट द वेस्ट अंटिल वी वेस्ट इट। तो हम जब वी तक वेस्टेड वेस्टेड। कचरा कचरा नहीं है, जब तक कि हम उसको कचरे के डब्बे तक नहीं पहुंचा रहे, हमें यस आपने यस बिल्कुल सही यस। कहा, ये जो 8R है, रीथिंक कीजिए, लेने से पहले ही रीथिंक कीजिए, रिफ्यूज करिए रीथिंक, कि नहीं ट्रू। लेना है, रिड्यूस करिए, रीयूज करिए, रिपेयर करिए। रिपेयर इकोनॉमी सडनली पता नहीं क्यों खत्म सी होती जा रही है। रीगिफ्ट हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या। इसीलिए ना गुड़गांव में बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं कि जैसे शू रिपेयर करने वाला, कुछ ऐसे फोन नंबर्स अवेलेबल हैं कि थैला, स्कूल बैग्स, पर्स रिपेयर करने वालों के, क्योंकि एक इको कॉन्शियस सिटीजन्स का एक ग्रुप भी है। तो वहां पर हम लोग इस तरह की चीजें कि मेरे घर में पार्टी थी, खाना बच गया है, अब इसको कैसे आज ही किसी को दिया जाए खाने के लिए। तो दो तीन लोग हैं, दो तीन ऐसे नंबर्स हैं जहां पर वो आएंगे आपके घर से, झूठा नहीं, खराब नहीं, मतलब जो आपका एक्सेस ऑफ फूड बच गया है पार्टी में उसको ले जाएंगे। सेम डे दे विल बी गिविंग इट टू द नीडी पीपल। तो यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन, मतलब प्रॉब्लम्स तो पता ही है, सॉल्यूशन के टुवर्ड्स काम करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, दैट्स इट। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। सोचने की जरूरत है, बस थोड़ा सा कॉन्शियसली हमें उसको समझने की जरूरत है। इसके लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा जाकर कोई चीज या कोई किट खरीद के नहीं लानी है इस हॉबी को करने के लिए। इसको आपको यस, सिर्फ थोड़ा सा आपकी डेली एक्टिविटीज में, जो कि मुझे लगता है हम इंडियंस के लिए इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमने अपनी दादी नानियों को ये करते हुए देखा है, अपनी मॉम्स को करते हुए करते हुए देखा है, देखा है। ये ये हमारे, कोई नई ये चीज हमारे डे नहीं टू है डे लाइफ का हिस्सा जी। था। हाँ जी। कजन्स के कपड़े पहनना, चीज एक दूसरे को देना, ये कोई सब नई कुछ था, चीज यस। नहीं है। इट्स नई ओनली बात नहीं है। क्या, जस्ट हाँ, अपने दिमाग को फिर से हमें थोड़ा सा रिफ्रेश करना है कि हमें एनवायरनमेंट को भी इसमें लेकर आना है। एंड आई थिंक इसमें लेकर। move towards a better, healthier, and a greener world. So, Dhanidhi, यस। thank you very much. Thanks for all the information that you have shared, and kudos to all the efforts which you are putting at the community level to make people aware and bringing that change in their lives to make them conscious choices, eco-friendly choices towards a sustainable living. Thank you once again. कोशिशें जारी हैं और रहेंगी। विल कीप ऑन डूइंग माय माय बिट, माय व्हाटएवर आई कैन डू। एंड थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू मी। इट रियली Thank मोटिवेट्स, इवन टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ, मतलब आप काम की बात कर रहे हैं। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू जनित जी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। पंचतत्व गर्ल फिर से लेकर आएगी इसी तरह की मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग स्टोरीज। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रीथिंक, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिपेयर, रीगिफ्ट, रिसाइकल और रॉट करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं एक और इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। तब तक थैंक यू, प्रणाम, बाय बाय, नमस्कार। बाय।